Life can get stressful, can't it? Well, yoga se hi hoga. Yoga can help you there, as indeed it can with numerous other things. No quick fixes, but in this episode of the MediaBrief.com podcast series, The Master's Voice, I have with me not a master, but a grandmaster, a lady, in fact, the first lady of yoga, not just in India, but the world over, Shraddheya Ma Hansaji Jaydev Yogendra, director of the world's first and oldest center of organized learning for yoga, that's the Yoga Institute in Santa Cruz, Mumbai, which completed 100 illustrious years in December 2018. And before we speak with Ma Hansaji, we'll speak with her dynamic young son, Shri Rishi Jaydev Yogendra, director of the Yoga Institute, Mumbai. This is MediaBrief.com's podcast series, The Master's Voice. I am your host and friend Pawan R. Chawla, and in this episode, we will look at classical householder yoga from the Yoga Institute, Mumbai. I am here in the office of Shri Rishi Jaydev Yogendra. He is a descendant of an illustrious family of yogis who have worked hard assiduously, and they have given India the world's oldest organized center of yoga, the Yoga Institute at Santa Cruz. So let me, without any further ado, welcome Rishi ji. Rishi, welcome to the show. Thank you so much, Pawan ji. It's a pleasure having you here. Friends, yoga has been a way of life for Shri Rishi ji. He has been raised in an environment that laid great emphasis on yoga as an education in living. Alright? So, he has an electrical engineering education. He also did his MBA in business, and subsequently, he worked with a prestigious MNC. His dedication and efficiency steered him to a record-breaking achievement of 3 promotions in 3 years. He was also the youngest branch manager at the Mumbai office of the MNC. Gave his best to his job, gained exceptional understanding of the work scenario in the real world. And what's he doing today? Well, Rishi ji has been a really great and a wonderful young brand ambassador of yoga in India. And remember, this is the pure classical yoga. Rishi, tell us about this wonderful yoga institute. After that, I'm going to be speaking to his respected mother, Shraddheya Hansaji. Okay, so but first let's speak to Rishi. So the Yoga Institute की स्थापना श्री योगेंद्र जी द्वारा 1918 में की गई थी जी. ये प्रथम व्यक्ति बने इस दुनिया के जो इस विजन को सार्थक कर पाए कि योगा सिर्फ हर्मिट्स के लिए नहीं है. He brought yoga from forest to society. योगा हजारों सालों से है. योगा ये एक ऋषि प्रधान देश है जी. यहाँ पे तो ये परंपरा हमेशा से रही है. बट श्री योगेंद्र जी ऐसे पहले व्यक्ति बने, योग को सोसाइटी के अंदर लाने का सार्थक काम उन्होंने किया. वो सिर्फ ये सोच में बंद के नहीं रह गए कि योगा सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनको हम रिक्लूस या हर्मिट्स की तरह देखते हैं, जो सन्यासी बन जाते हैं. बट सोसाइटी के हाउस होल्डर्स लोग जो हैं उन्हें योग का लाभ मिल सके. दैट्स व्हाई ही ब्रॉट इट टू द सोसाइटी एंड ही स्टार्टेड द हाउस होल्डर्स योगा मूवमेंट. Wonderful. जितने भी हाउस होल्डर्स हैं, जैसे माँ हमेशा कहा करती हैं कि हमें अपने लिए समय नहीं है. हम अपने काम में, अपने फैमिली में, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी बिजनेस लाइफ में, हमारी जॉब में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं. एंड योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. वी आर इंस्टीट्यूट विच स्पेशलाइजेस in classical yoga. Wow. This is what our uniqueness is. We can find yoga institutes all across the globe, but their main focus is, the primary focus is just the asanas part. But we, as a classical approach which we have, takes care of the holistic approach, which includes their diet routine, their pranayams, meditation, asanas, and the most important is their attitude. The bhavas जिसकी बात करी गई है वो काफी important है. हमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा भी सपोर्ट मिल रहा है. बिकॉज योगा के लिए आज की तारीख में हम देखें तो जो टूरिज्म बढ़ता जा रहा है उसमें काफी बड़ा योगदान योगा का रह रहा है. हम आज की तारीख में भी इंस्टीट्यूट में देखते हैं तो लगभग 25 देशों के लोग, people from around 25 nations are residing right now in the institute and doing their teachers training program, which in turn they will go and start their own centers and spread the awareness of yoga across the globe. So this is one of the major support from which from Government of India we are getting. So this is really, really wonderful.
And folks, it's been a bit of a long segment, but I really enjoyed the conversation. I'm sure you did too. Let's cut for a little break. But before that, let me thank Rishi. Rishi, thank you ever so much. Thank you so much, Pawan ji. Thank you. Wonderful. And remember, folks, I'm going to be coming back with somebody who is really the first lady of yoga, not just in India, but in the whole wide world. I'm speaking about the most respected Shraddheya Srimati Hansaji Jayadev Yogendra. She's the director of the Yoga Institute, and you don't know what you'll miss if you do not come right back. So stay tuned and we'll continue this wonderful chat. Welcome back. This is the Master's Voice podcast series on MediaBrief.com. I'm your host Pawan R. Chawla, and in this episode, this yoga special, my special guest is Shraddheya Ma Hansaji Jayadev Yogendra. And we are speaking about India's greatest gift, one of the greatest gifts of India to the whole wide world, classical yoga. And to speak about that with me is Shraddheya, most respected Srimati Hansaji Jayadev Yogendra, director of the Yoga Institute. She is also the chairperson of the Yoga Certification Committee for Quality Council of India, QCI, and president of the International Board of Yoga. And you'll be inspired to know that she is not only the leading face of householder yoga, but she has conducted over 100,000 theoretical and practical sessions of yoga and inaugurated hundreds of yoga centers all over the world. So, सभी आपको बहुत श्रद्धा से माँ कहते हैं, तो मैं भी आपको माँ कहूँगा. जी बिल्कुल. माँ, आपका स्वागत है. माँ हंसा जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि जो 100 वर्षों की तपस्या श्री योगेंद्र जी ने शुरू की थी, उसको आप सभी लोग कितने प्यार से और कितने दिल से आगे बढ़ा रहे हैं. तो माँ, मुझे ये बताएं कि हाउस होल्डर योगा क्या है? देखिए, हाउस होल्डर की पर्सनालिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ अ हाउस होल्डर. हाउस होल्डर इज अ पर्सन हु इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल पर्सन अबाउट नॉट हिमसेल्फ बट फॉर द होल फैमिली, फॉर सोसाइटी, नेशन एंड एक्चुअली ह्यूमैनिटी. It's only on householder that the world is taking the support from. They are the real working people who will not find time for themselves in life. This is the whole. You just look at mother of the house or father of the house, brothers of the house. You will realize that after their original education, initial education, all that, once they start on the mainstream, they have to work. Get up in the morning, rush to work whole day, and come back and look at the Mumbai city's life. Traveling has become so absolutely very hectic, so hectic and so tiring. Right. And mentally also so much frustrating that the car doesn't move further, trains are totally packed. So such personalities, how are they going to take care of themselves? Correct. Because they have to take care of father, mother, brother, sister, children, everyone around. Right. And so this science, yoga has tremendous things to offer, so much at physical level, at mental level, emotional level, intellectual level, interpersonal level, that if they know yoga, not complete yoga as a subject, but yoga as an applied science, yoga as a way of life, then they would really benefit. Otherwise, you notice that after 30 people get heart attack, or after 35 they have diabetes. That's true. Or name any disease. Now cancer is also coming up so much that in young age people suffer from that. Even little kids, they have so much of anxiety and tension. So all this area could be handled if they learn yoga properly. For learning, they have to spend little time. But application, they need not separately take out time. They would be living yoga. I always say that live yoga, because yoga becomes a part and parcel of your personality. Oh, your way of life, your thinking. A way of life. Your thinking goes like that. Your behavior goes like that. You eat, think and eat. You don't overeat. You somehow get into such a healthy lifestyle that you will prevent all the problems. Right, ma'am. In fact, let me tell you, listeners, the activities at the Yoga Institute, of course, you have yoga classes for men, for women, for children, but you also have some very special programs like,
you all, ma'am, you all conduct yoga for commando holistic health and wellness. Yes. You all do it for municipal staff wellness through yoga. Yoga for police, I think, is free. Right. Yoga for BMC school children. Yes. Across all the BMC schools. Yes. Really amazing, ma'am. But also listen, friends, they also have programs in yoga for special children, for exploited people, okay, and for senior citizens also, and then environmentally friendly lifestyle is what is taught. So there are so many beautiful things you all do. And ma'am, how many teachers have you trained over the last maybe 50 years? Maybe more than 50,000. Wonderful, wonderful. And they are all over the world. Wonderful. After they learn, they go, some want to teach, some want to just apply into their life and see that the family and friends are healthy around them. Wonderful. But one you didn't mention, the class which is for pregnancy. Oh, the whole woman's whole lifespan, prenatal, postnatal, pregnancy, even premenstrual tension, even certain things like polycystic ovaries, which ladies suffer a lot from. Yes. All we have various classes for specially ladies, women, to see that they are taken care of, their health is taken care of. वंडरफुल. माँ, मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा यहाँ पे. आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए. आप मेरे सामने हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, एंड आई फील ब्लेस्ड बीइंग हियर विथ यू, मैम. So indulge us. Let's take a little break in my conversation with Shraddheya Srimati Hansaji Jaydev Yogendra, Director of the Yoga Institute. Stay tuned. Welcome back. This is the Master's Voice podcast series on MediaBrief.com. I'm your host Pawan R. Chawla, and in this episode, this yoga special, my special guest is Shraddheya Ma Hansaji Jaydev Yogendra. I must tell you that Srimati Hansaji Jaydev Yogendra, she has been the country's first and only lady yoga guru to be invited by the Government of India, Ministry of Ayush, to grace the magnificent event of the first International Day of Yoga in New Delhi. She shared the days with the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, on the 21st of June 2015. तो माँ, कैसा लगा आपको उस वक्त कि भाई योगा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी सामने थे और पूरे देश को ये बता रहे थे कि this is something that we need to internalize, and you being there with him was a token of appreciation from all of India to your great work. कैसा लगा था उस दिन आपको? नहीं, मुझे इतनी खुशी हुई कि एटलीस्ट अब थोड़ा ये रिकग्निशन मिला है जी कि द योगा इंस्टीट्यूट जिस ढंग से योग सिखा रहा है जी, उसकी वैल्यू प्रधानमंत्री को समझ में आई. उन्होंने हमारी किताबें देखी, उन्होंने सब डिटेल में गए वो कि हम क्या सिखा रहे हैं, और उन्होंने अपनी स्पीच में वही सब बातें की कि योगा सिर्फ आसन नहीं है, योगा जीवन जीने का विज्ञान है. और ये सारी बातें जिस ढंग से वो बोल रहे थे, और जब वो मेरे सामने आए और मुझे जब कहा उन्होंने प्रणाम हंसा जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. और मैंने जब उस व्यक्ति को देखा, पवन जी आपको बताऊं, तो देखते से ही मुझे लगा कि ये एक तपस्वी है. अच्छा. और वो एक तपस्वी नजर आया उसमें. मुझे लगा कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर हमारे देश की बागडोर होगी तो सचमुच वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो एक पारखी है. उसने जीवन जिया है और उसने कष्ट झेले हैं और उसने तपस्या की, वो नजर आ रहा था उसके फेस से. इसलिए मुझे लगा कि अब जरा देखो किस तरह आगे बढ़ेगा. और योग तो उनके आने के बाद बहुत ही आगे बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सबको एनकरेज किया कि अब ये अपनी संस्कृति आगे बढ़नी ही चाहिए. इसलिए आयुष मिनिस्टर भी बार बार यहाँ यूं भी आ गए थे और लोग, अब हम सब योग के गुरु जुड़ने भी लगे उसके बाद. नहीं तो सब अपना अपना अपने अपने ढंग से योग सिखाते थे. लेकिन ये इंस्टीट्यूट का योग मैं मानती हूँ कि हर गृहस्थी के लिए जरूरी है. और आजकल के युग में आप देख रहे हो घर टूट रहे हैं. मुझे अंदर से बहुत ये पीड़ा हो रही है कि परिवार बिखर रहे हैं. पति पत्नी एक दूसरे के साथ मैनेज नहीं कर पाते, एक दूसरे का स्वभाव नहीं झेल पाते. जो एडजस्टिंग कैपेसिटी है, जो थोड़ा सा सहन शक्ति है, थोड़ा एक दूसरे के लिए प्यार से कुछ कर देने वाली बात है, ये सब कम होता जा रहा है. इसलिए बहुत ही जल्दी वो डिवोर्सेस हो रहे हैं. बच्चे तो बहुत ही ज्यादा परेशान है इस वजह से, उन्हें सही डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है. मुझे तो कभी कभी लगता है वो बात याद आती है महाभारत की. महाभारत में जो ब्लाइंड राजा हैं धृतराष्ट्र, और उनकी पत्नी आई
और उन्होंने भी अपनी आंख पर पट्टी बांध ली और दोनों नहीं देख पा रहे हैं और दोनों के 100 बच्चे हैं। उन बच्चों को संस्कार कैसे मिलेंगे जब माँ बाप दोनों ही देख नहीं पा रहे किस बच्चे को क्या जरूरत है और किसकी क्या नीड है। वो बच्चे फिर इसी तरह पले हुए और उसी तरह फिर वो कौरव बने। बहुत जरूरी है कि माँ बाप का पूरा लक्ष्य बच्चों के साथ हो, उनके साथ सब करें, जो कम होता जा रहा है आजकल। यहाँ भी मुझे बहुत कठिनाई लग रही है और डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर परिवार अगर सीख ले, और मैं तो मानती हूँ कि हर लड़की शादी करने के पहले योग सीख ले कि जिससे वो आगे गलतियां ना करे और अपने आप को संभाल सके। जी, कल ऋषि जी ने मुझे बताया था कि जब किसी का भी बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ाई करने के लिए, तो आए दिन वो देखते हैं कि उन बच्चों को उनके माता पिता जो हैं यहाँ पर जो 7 दिन का प्रोग्राम है रेजिडेंशियल, उसमें डालते हैं। तो उसके बारे में जरा सा बताएं और फिर ये भी बताएं कि योग जो है वो स्ट्रेस को कैसे कम कर सकता है। जी, तो 7 दिन तक जो बच्चा यहाँ पे सीख के, पढ़ के, रह करके, इंटरनलाइज करके फिर बाहर जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो क्या उसमें बदलाव आ सकता है? क्या चीज़ें वो लेके जाता है यहाँ से, वैल्यूज़ एंड वे ऑफ लाइफ, जो उसको विच स्टैंड्स हिम इन गुड स्टेट? जरा सा थोड़ा सा प्रकाश डालिए इस पर। देखिए, आजकल के बच्चे काफी इंटेलिजेंट हैं। उन्हें लंबे लंबे सरमन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है। कभी न कभी कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, आपको क्या करना चाहिए? 4 तरीके हैं, या तो आप रिएक्ट करोगे, या तो आप थोड़ी देर के बाद में सोच के उसको बराबर सिखाओगे कि वो कितना गलत था, और या दुखी होके और सैड फील करोगे और उस बात को छोड़ दोगे, और या आप उस व्यक्ति के बारे में सोचोगे जो बुरा व्यवहार कर रहा है कि उस बेचारे के पास सुख नहीं है, वो उसका मन अभी कुंठित है, इसलिए वो किस तरह मैं उसे हेल्प कर सकूं। बुरा तो लगाने का सवाल ही नहीं है, रादर केयरिंग एंड कंपैशनेट व्यक्ति भी बन सकता है। तो हम ये बताते हैं लोगों को, एम्पैथी आ जाती है कि हाँ, जीवन कैसे जिया जाए, ये सब तरीके हैं। और बच्चों को समझ में आने लगता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो नुकसान मुझे है, मैं चिंता करूंगा तो मेरा ही ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, मेरा ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वगैरह वगैरह। तो हम 7 डे कैंप में साइंटिफिकली उनको बताने का प्रयत्न करते हैं कि इस तरह के मन की स्थिति से शरीर में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं और क्या किस तरह हम अच्छे भले चंगे होते हुए भी रोगी होने लगते हैं। तो उन चीजों की तरफ सचेत रह करके उस तरह का रिएक्शन या व्यवहार ना करें। बिल्कुल सीधी बात है। कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा? अगर आप क्लेवर आदमी हो तो अपने आप को नुकसान कभी नहीं करोगे और दूसरों का भी नुकसान नहीं करोगे। बिल्कुल। इसलिए ये सब वो सीख लेते हैं कि हाउ टू टैकल द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में तो वैरायटीज मौजूद है, अभी आप हर एक के साथ आपका पंगा पड़ेगा, पाला पड़ेगा जो बम्बई की भाषा में कहते हैं पंगा लेना। तो ये पढ़ने वाला है, तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, तो ये वो सीख लेते हैं। और फिर दूसरा, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो स्ट्रेस फ्री रखने के लिए पहले तो इंसान को सही ढंग से सांस लेना आना चाहिए, हाउ टू ब्रीथ, बिकॉज माइंड और ब्रेथ साथ साथ में जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ तो ब्रेथ डिस्टर्ब होना ही है जी, इसलिए वो गो पैरेलल। इसलिए ब्रेथ को कंट्रोल करो, माइंड को तो कंट्रोल धीरे धीरे होगा, इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, मगर ब्रेथ पर ध्यान दो। उसी तरह दिन में सवेरे उठते से ही क्या करना जिससे अंदर की प्रक्रियाएं अच्छी काम करने लगे। तो रात भर आप सोए हैं, दिन उठते से ही भाग रहे हो, उसकी जगह 2 मिनट बेड में ही अगर आपने कुछ थोड़ा सा शरीर को खिंचाव कर दिया, लंबा सांस ले लिया, एब्डोमेन के रीजन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है, सांस लेते हुए पेट बाहर है, ये तकनीक ऑफ योगा, योगा टेक्नोलॉजी जी, ये थोड़ी सी सीख लें और उसको सवेरे उठते से ही उपयोग में लाएं। हम स्नान कर रहे हैं तब योगा बहुत हो जाता है, स्नान करते करते हम उन्हें ये सब प्रैक्टिकल बात बताते हैं। अच्छा। अलग से कहाँ समय मिलेगा किसी को, लेकिन ये 2 चीज तो आप करेंगे ही, उठेंगे, बेड छोड़ेंगे, तब क्या कर लेना, स्नान करते वक्त क्या कर लेना, और ट्रैवल कर रहे हैं तब किस तरह योग की टेक्निक का उपयोग कर लेना जी। ऑफिस में बैठे बैठे भी छोटी छोटी टेक्निक का उपयोग कर सकते हो जी। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो सीख जाते हैं 7 दिन में, और वो उनकी आदत पड़ने लगती है 7 दिन के अंदर, उनकी गलत आदतें छूट जाती है। बहुतों को स्मोकिंग की आदत पड़ी है, कोई ड्रिंक ले रहा है, हफ्ते में 1 बार चाहिए ही चाहिए, किसी को न्यूज़पेपर ना हो तो पेट साफ नहीं होता, तो किसी क्या क्या हम आदत डाल देते हैं, इतनी अजीब अजीब आदतें, वो सब छूट जाती है अगर 7 दिन वो या
कोर्स कर लेता है जी। और व्यक्ति को समझ में आने लगता है हेल्थ क्या है जी। क्योंकि सिंपल खाने से भी कितनी हेल्थ अच्छी होती है, बिल्कुल। उसको ये भी समझ में आने लगता है कि कितना उसके शरीर के लिए जरूरी है। जी 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 जी। तो हम कहते हैं हर इंसान अलग अलग है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है। तो उन्हें अपने साथ संबंध जुड़ता है जब यहाँ 7 दिन रहते हैं जी। और जी। दे बिकम वेरी केपेबल, हेल्दी, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स। वंडरफुल वंडरफुल। तो माँ एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे। जी। साथियों, मैं हूँ श्रद्धेय श्रीमती हंसा जी जयदेव योगेंद्र के साथ, जो कि डायरेक्टर हैं योगा इंस्टीट्यूट के, द योगा इंस्टीट्यूट। मैं और माँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम बस यूं गए और यूं आए। आप कहीं मत जाइएगा। Welcome back. This is the Master's Voice podcast series on MediaBrief.com. I'm your host Pawan R. Chawla, and in this episode, this yoga special, my special guest is Shraddheya Ma Hansa Ji Jaydev Yogendra. सो माँ आप मुझे ये बताएं कि अभी आपने पहले कहा था ना कि फैमिलीज में बहुत तनाव हो जाता है, पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं या अगर सगे रिश्तेदार इस तरह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उनको ऐसा या व्यक्ति को ऐसा क्या सिखाया जाता है कि वो इन सोच वाली बुद्धि ही लेकर के जाती है इन एरियाज में जहां पे कि ट्रबल होता है आपको, यानी कि जो दृष्टिकोण किस तरह से बदला जाए, तो वो कैसे आप सिखाते हैं योगा? देखिए ना, योगा एक सब्जेक्ट है, वो 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ के जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, ध्येय क्या होना चाहिए, और उसमें लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं हमेशा बैलेंस स्टेट में रहूं। ऊपर नीचे कितने ही तनाव आते रहे, मैं क्यों तनाव में तन रहा हूं, मैं अपने आप को बैलेंस में रखूं, तो वो लक्ष्य हमेशा रहे, तो आप कोशिश करोगे। दूसरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, इंसान कैसे सोचता है और उसे कैसे सोचना चाहिए जी। तो और तीसरा ये टेक्नोलॉजी, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियास। अब बात आती है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत पॉपुलर है सब जगह और अननेसेसरी टेक्नोलॉजी भी बहुत हो रही है, जैसे कपड़ा खा रहे हैं, निकाल रहे हैं, पेट हिला रहे हैं, ये वो सब कर रहे हैं, जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो हर एक को समझना जरूरी है, हाउ टू थिंक। और यहाँ हम कहते हैं हर गृहस्थी को कि हर गृहस्थी को पहले तो स्वावलंबी बनना चाहिए जी, सेल्फ रिलायंट। योग का तो फर्स्ट स्टेप ही है कि हर इंसान खुद को समझे और खुद के लिए जो जरूरी है उस पर ध्यान देकर और अपना जीवन जिए, तो उसको स्वावलंबी बनना जरूरी है, सेल्फ रिलायंस जी। तो आप ओल्ड होते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको देखे, क्यों भाई, आप पहले तो सही रहो, बीमार मत रहो, पहले से ही अपना ध्यान दो, और कोई क्यों आपको देखे, रादर आप अपने अनुभव अगर जहां भी कहीं जरूरत हो बताओ, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो किसी से। तो हर गृहस्थी को हम पहले ये सिखाते हैं कि सेल्फ रिलायंट बनो और एक्सपेक्ट किसी से भी करना नहीं है। कोई मुझे रिस्पेक्ट करे कोई ना करे, वो उसका अपना स्वभाव है, वो उसके कर्म है, उसके कर्म। इसलिए हम दूसरा कर्म के सिद्धांत को सामने लाके रखते हैं कि कर्म थियरी पर हमारा जीवन चलता है, हम जैसे कर्म करते हैं उस हिसाब से हमें उसके अनुभव होते हैं जी जी, कॉज एंड इफेक्ट। और इसीलिए दूसरों से एक्सपेक्ट तो करना ही नहीं, करना अपने से ही है। मैं जो कर्म करूंगी, मुझे प्यार चाहिए तो मैं प्यार दूं तो मुझे प्यार मिलेगा। अपने स्वावलंबन की बात करें जी, तो एक तो भाई मैं गलत तरीके से रिएक्ट ना करूं, और दूसरा मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको भी मैं निभाऊं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। स्वावलंबन में बात यही आती कि मैं एक्सपेक्ट ही ना करूं ना किसी से, जिससे फिर मेरे पास पूरा समय है लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। क्या बात है, यस। कोई खुश हुए या कोई ना खुश हुए, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, वो उसे मैं अपने हिसाब से बहुत जल्दी सबका, यानी मैं जिसको कहते हैं ना डिटैच्ड होके इंसान अपना कर्तव्य, अपना धर्म बहुत अच्छी तरह कर सकता है, और वो मैं कर सकती हूँ अगर मैं स्वावलंबी बनूं तो। जी माँ, एक बात बताएं, हमारे लोग हैं, मेरे साथी हैं देश भर में, बाहर भी हैं, तो अगर उनको कहा जाए कि देखिए सब लोग व्यस्त हैं, जीवन की आपाधापी चलती रहती है, भाग दौड़ कर रहे हैं सभी लोग, तो अगर मैं उन सब के लिए आपसे कहूँ कि एक ऐसा कुछ प्रोग्राम सिंपल हो, छोटा हो, शॉर्ट हो, जिससे उन्हें बहुत फायदा हो, क्या उन्हें करना चाहिए जो कि वो यहाँ द योगा इंस्टीट्यूट में आके कर सकें? पहले तो थोड़ा सा तो सीख लेना पड़ेगा ना कि मैं कैसे सांस लूं, या कैसे एक एक पार्ट मेरे शरीर का रिलैक्स कर सकूं, या मैं किस तरह सोऊं, क्योंकि गुड स्लीप इज अ मस्ट।
जी। अगर वो ही नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। जी। तो ये सब थोड़ा सीखना पड़ेगा, और उसके लिए मैं कहूंगी कि अगर 9 से 5 या 10 से 5 भी अगर एक दिन निकाल लो आप, एक आप छुट्टी का, जस्ट वन डे में हम आपको ये सब सिखा देंगे। सप्ताह में किसी भी दिन हम नक्की कर लेंगे, किसी भी दिन कर सकते हैं। एक दिन नक्की करें आ जाए और हम उन्हें सिखा दें। हम एक एक दिन के कैंप रखते ही हैं यहाँ। और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैंप तो मेरे ख्याल से हर एक के लिए जरूरी है, तो चलो उसमें ही आ जाओ। मगर एक दिन में आदमी उतना सीख लेता है कि जिससे वो अपने आप को सही रख सके, और वो फिलॉसफी भी आ जाती है उसके माइंड में, ये समझदारी आ जाती है। मैं कुछ पढ़ रहा था हमारे द योगा इंस्टीट्यूट के लिटरेचर में इसके बारे में। उसमें कहा है कि योग ये नहीं कहता कि हम स्ट्रेस को क्योर कर देंगे, लेकिन स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना चाहिए सकारात्मक तरीके से, उसको पहचान के पहले। सामने वाले को तो हम बदल नहीं सकते, वो तो एक रूड आदमी रूड ही बिहेव करेगा, पॉलिटिकली बिहेव करेगा। मगर उसके एक्शन को मैं कैसे लूं, पहले तो मैं अपने आप को हर्ट ना करूं उसकी वजह से। इसलिए बुरा लग गया, दुखी हुए, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कुछ और फिर उसने कुछ अलग कर दिया, ये सब करना ही नहीं, एक्सपेक्ट करना ही नहीं किसी से। लेकिन मैं उसको कैसे रिस्पॉन्ड करूं, हम कहते हैं एक है रिएक्शन और एक है रिस्पॉन्स। जी हाँ। तो हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, इट्स टोटली इन माई हैंड। टू गेट हर्ट और नॉट टू गेट हर्ट इज माई चॉइस। वंडरफुल। आप बिल्कुल समझ लीजिए, बुरा क्यों लगा, बुरा लगाऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा, तो एंजॉय करो। वो तो बोल के निकल गया, उसका निकल गया, उसके बिहेवियर को एंजॉय करो, उसका आनंद लो। कोई चिल्ला के बोलता है वाह एक वैरायटी है, कोई बोलता ही नहीं वो दूसरी वैरायटी है। जी हाँ। एक एक इंसान एक एक नमूना है, वैरायटी है, हर एक को एंजॉय करना आना चाहिए, और रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्स करना आना चाहिए। तो ये योग सिखा देता है हाउ टू डील विद इट। अब बहुत व्यस्त है, तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम क्या कर डालें, या ऑफिस में बैठे हैं तो कम से कम ऊपर छत को ही देख ले, क्योंकि हमेशा नीचे ही देखते रहते हैं, तो ऊपर देख ले तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें। या बैठे हैं तो जरा सा एक लंबा सांस ही ले लें, एक बार लंबा सांस ले लो। या कोई दूर की चीज देखो, दिन भर आप पास की चीज देख रहे हो, कोई दूर की चीज देख लो जरा, और फिर काम में लगो, तो ऑप्टिक नर्व्स रिलैक्स हो जाती। तो इस तरह हम छोटी छोटी बातें सिखा देते हैं, और आप जीवन में उसको अपना लीजिए तो आनंद आ जाए। एंड वन मोर थिंग, माँ ये बताएं कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं? जी बिल्कुल है। और कोई चाहे तो 1 मंथ का भी है, 3 मंथ्स का है, प्लीज थोड़ा सा बता दें जरा उनके बारे में। देखिए 1 मंथ कोर्स हमने रखा है सिर्फ ऐसो के लिए जो हेल्दी लोगों को सिखा सकते हैं। वहाँ हम डिजीज और सिकनेस पे जाते ही नहीं है। जी हाँ। वहाँ हम बेसिक ये सब योगा की टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी का एक वो दे देते हैं, वो योग सूत्र सीखते हैं, थोड़ा ये सब होता है। तो क्या और कितना टाइम लगता है टीच करना वो हम सिखाते हैं। वो 1 मंथ का जो कोर्स है वो सवेरे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा। हाँ, पूरा दिन एक महीना जरूरी हो जाए, 1 महीना। अरे वाह, ये नेशनली रिकॉग्नाइज्ड ये प्रोग्राम 1 मंथ करने के बाद में दे कैन डेफिनेटली गिव एग्जाम ऑफ आयुष मंत्रालय। ओके। हाँ, QCI की एग्जाम, वो देके और वो सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, और इंस्टीट्यूट की एग्जाम देके वो सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, यानी दोनों सर्टिफिकेट हो जाता है। फर्स्ट लेवल की एग्जाम वो दे पाएंगे। ठीक है। मगर दूसरे जो सब कोर्स हैं वो जरा और एडवांस कोर्स है, जहाँ हम हेल्थ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट 3 मंथ से शुरू होता है। 3 मंथ एक है, एक 3 मंथ है, एक 1 ईयर है। 3 मंथ तो यहाँ रह के करने का, या पूरा सवेरे 6:30 से रात को 8 बजे तक अच्छा के स्पैन में। मगर 3 महीना मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ बाहर की दुनिया भूल जाओ, अपनी सब चीज भूल जाओ, 3 महीना बिल्कुल यहाँ ध्यान दे दो। 3 महीने में आदमी बहुत ही काया पलट हो जाती है, पूरी काया पलट हो जाती है, सब कुछ बदल जाता है। जी। और उसके पर्सनालिटी एक अलग ही बिल्कुल निखरती है। तो ये 3 महीने के कोर्स होते हैं। और दूसरे कोर्स हैं 6-7 महीने का कोर्स, जो सिर्फ 3 घंटा आना होता है, 5 से 8 वर्किंग लोगों के लिए ठीक रहता है। तो वो यानी कि 3 महीने वाले को आप 7 महीने में 3 कर सकते हैं, वो कर सकते हो। या 1 साल का हिंदी में होता है, वो 1 साल का कोर्स होता है, जहाँ मे वेकेशन हम पूरा देते हैं, क्योंकि यहाँ 1 मंथ कोर्स में महिलाएं आती है, हाउसवाइफ्स काफी आती है योग शिक्षक बनने के लिए। तो फिर वो मे वेकेशन दे देते हैं, बच्चों के लिए ठीक रहता है, माँ घर में हो। और स्पेशली स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस के लिए भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, जैसे रेस्पिरेटरी है, ऑर्थोपेडिक कैंप है, डायबिटीज है, प्रेगनेंसी आपने बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप बता चुकी हैं, सीनियर सिटीजन, चिल्ड्रन, बच्चों के लिए 5 साल से लगा के बड़े, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ हर इंसान एक बार
या तो 7 दिन कर डाले दुनिया भूलकर, जी और जी या और ही केपेबल होना हो टीचर की तरह तो 3 महीने आके कर डाले, जी बहुत फायदा हो जाएगा। बहुत 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 धन्यवाद माँ हंसा जी, आपने इतना समय दिया और आपकी बातें हमारे लिए आशीर्वाद हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी लोग जो हैं योग का भरपूर फायदा उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। काम करेंगे। जी 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 जी। तो अपने सभी साथियों की तरफ से मैं आपको, ऋषि जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर करे कि अगले 100 वर्ष भी इसी तरह से योग के फैलाव में तरक्की करता रहे। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से आप करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे आपसे सभी मिलके। साथियों के लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगा। बिल्कुल, मेरा पूरा आशीर्वाद है। मैं यही मानती हूँ कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले जी, खुद को सही स्थिति में रखना, खुद का कर्तव्य बराबर करना, तो दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, शांति सब जगह। आपके आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक प्रणाम। थैंक यू वेरी मच माँ। नमस्कार। So that, my dear friends, has been a wonderful conversation for me with Shraddheya Ma Hansaji Jaidev Yogendra ji. She is director of the Yoga Institute. Please join me in wishing the Yoga Institute a wonderful century ahead. So that's it for this episode of the Master's Voice podcast on MediaBrief.com. Let me know if you liked it, have any suggestions, would like to see someone featured on it. Just write into newsdesk@MediaBrief.com and we can take things ahead. Till then, thanks for listening and have a good one.